हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। हुसैन पब्लिक स्कूल के अंदर रखा गया था एसएसएलसी टॉपर्स का फेलिसिटेशन प्रोग्राम, जहां इस मौके पर इलियास सेठ प्रेसिडेंट हुसैन पब्लिक स्कूल यहां पर मौजूद रहे। इलियास सेठ जो कि एक डायनामिक एजुकेशनिस्ट हैं, साथ साथ बिजनेसमैन हैं और सोशल वर्कर हैं। उन्होंने हमेशा से हुसैन पब्लिक स्कूल चलते हुए काफ़ी उन्होंने सीरियसली वर्क किया है और यहाँ से कई सारे टॉप क्लास बच्चों ने अपनी तालीम हासिल कर करके आज कई बड़े बड़े पोजीशंस पर हैं। इसी को चलते हुए कई सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और खास करके जो टॉपर्स हैं पिछले कई सालों के, उन सबको यहाँ पर बुलाकर एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर वाई.एस. रवि कुमार जी यहाँ पर मौजूद रहे और साथ श्री बसवराज देशमुख जी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इन एसपी इंस्टीट्यूशंस, साथ श्री किरण कुमार शेटकर प्रेसिडेंट कलबुर्गी साइकिलिंग क्लब और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। करीब 100 के बच्चे यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने 90% से बढ़कर हासिल किया है और ये स्कूल हमेशा से टैलेंटेड बच्चों को यहाँ पर लाया है और बच्चों को यहाँ पर कई सारे बेहतरीन फैसिलिटीज मिले। और खास बात ये रही कि हुसैन पब्लिक स्कूल के अंदर कर्नाटक स्टेट के 5th रैंक होल्डर भी हुसैन पब्लिक स्कूल से ही बिलोंग करते हैं। डॉक्टर वाई.एस. रवि कुमार ने इलियास सेठ के इस काविशों को अप्रिशिएट भी किया और कहा कि एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पर चल रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बसवराज देशमुख साहब ने भी ये कहा कि खास बात ये रही कि इलियास सेठ का जो विजडम है उन्होंने जो अप्लाई किया है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की निशानी के साथ साथ एक एजुकेशनिस्ट बनकर आगे काम करना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। साथ साथ किरण कुमार साहब ने ये भी कहा कि आने वाले वक्त के अंदर बच्चों को साइकिलिंग भी करना बहुत ज़रूरी है और साइकिलिंग को प्रमोट भी करना। इस मौके पर जनाब जमीलुर रहमान साहब प्रेसिडेंट नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, जनाब अवेस और कई सारे स्कूल के स्टाफ और पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम के शॉर्ट हाइलाइट्स। My dear students and their parents, it's indeed very heartening to see that today I have been invited as the chief guest for honoring the students who have secured and done exceptionally well during the 19th and 20th SSLC batch. To secure a good score or good position in 10th is something where a student puts an effort for not just 1 year, he puts an effort for all the 3 years of the high school. I was not someone who was a topper, or I was not someone who was who used to do exceptionally well during schools. I was an average student, but only thing I decided to become someone in future, and I had set my goals and I always worked towards that goal. Hold a good position in the society and be in a position where I can help others. We have to have education which is holistic, which is education which should have a human value and human touch. This is because in a world where we are witnessing more and more conflicts day in and day out, the children should become more and more accommodative, more and more friendly nature, and a spirit of brotherliness should develop in each of the students. So there may be great advancements in the science, but if it is used in a wrong direction, what is going to happen? It is going to cause destruction of all. So it is of no use. So knowledge used without our values, our human values and our compassion for our fellow people and brotherliness, it will cause destruction. So this is what all that I wanted to say, that be compassionate to others, use your knowledge and use your skills in a positive direction. You will be a great asset to the society. I thank you one and all. Thank everyone for giving me this opportunity to speak. Thank you so much. Ilyas Hussain Saab, the chairperson, Jamil Ahmed Saab, president of National
institutions, Kalburgi, and all the dignitaries on the dais. To see such a smile on the faces of all the students who have scored invariably different marks. Some might have scored more, some might have scored less, but all have fought with the same spirit. That's why I salute all the students and all the teachers who have struggled to get them well. And I congratulate them. I remember I had come as a chief guest here some 6 years back. Yes, along with Shalini Madam, IAS officer who was the regional commissioner here. And now I am seeing there are a lot of changes in the school, not only in terms of infrastructure, in terms of quality. We were shocked when Janab Inyas Mohammed told that we have scored the 5th rank in the state. I said this is a very, very good feat by Hussain Public School. ये जो नामुमकिन था वो मुमकिन करके दिखाया आपने. There is also a fitness freak about your health. The future, the wealth of the nation are the children. So I rightly believe the management has taken lot of trouble in educating the teachers first and then the children. So the vibrations are increasing with every coming year. And I pray God that Hussain Public School will come up with many more flying colors in the years to come. Thank you one and all. मैं जो बोला नॉलेज इज पावर, वैसे ही नॉलेज का हमारे हुसैन साहब चाहे तो उन्होंने ये सर्विस करे, उन्होंने ये 5 एकड़ में पूछा, मैं 5 एकड़ है बोले, उन्होंने चाहे तो उन्होंने दूसरा इंडस्ट्री वगैरह लगा के उनका कमाई करते थे, लेकिन उन्होंने सर्विस देना बोल के एक स्कूल निकाले, वो बहुत अच्छा हुआ सर. हमारे साहब ने उनको अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि दूसरे में कमा के बच्चों को एजुकेशन में तो मुझे मालूम है जो भी है सर्विस देना पड़ता, खाली इसमें से प्रॉफिट नहीं है, सर्विस देना पड़ता. और साहब बोले आगे स्कूल बहुत अच्छा हुआ. हमारे किरण साहब भी बोले 5 इयर्स के पहले देखे साहब भी बहुत चेंजेस हुआ. नेक्स्ट 5 इयर्स में देखिए आप बहुत अभी चेंजेस हो गए, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल निकालने वाले हैं जनाब इलियास साहब ने. उनको भगवान उनको अभी तरक्की दे. मेरे को असल में शुक्रिया अदा करना है, एड्रेस नहीं करना है, बात नहीं करना है. टाइम बहुत हो चुका है, मगरिब का भी टाइम हो रहा है, साहब को भी जाना है. तो मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आप लोगों ने काफ़ी टाइम दिया, खास तौर पे आप सब लोग तो 1-1 मिनट कीमती रहता है सब लोगों का. मौला साहब बच्चों को जो है आप आने से हिम्मत अफजाई होती है, आपको देख के आपके जैसा बनने की ख्वाहिश होती है बच्चों को, तो आप आए तो सब बच्चों को इंस्पायर होता है. बल्कि मैं बोलने से साहब 1 मिनट में तैयार होकर आ गए. ठीक है, अभी बच्चों का मामला है तो मैं आता हूँ. तो मैं समझता हूँ साहब लोगों से आप इंस्पायर भी हुए होंगे, आपके दिलों में ख्वाहिश भी जागी होगी, हमको भी IPS बनना है, IPS बनना है, आगे बढ़ना है. और मेरे से जो भी होता मैं करूँगा इंशाल्लाह. जैसा बसोरा साहब बोले, हम इंडस्ट्री डालते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, वहाँ उतनी खुशी नहीं होती जितना यहाँ आने के बाद मुझे खुशी होती है. मुझे अच्छा लगता है बच्चे पढ़ते लिखते आगे बढ़ते, और ख़ास तौर पे गर्ल्स ज़्यादा हैं. साहब बोले एक औरत का बदलना पूरे ख़ानदान का बदलना है, तो बड़ी खुशी की बात है. और मैं ये बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जो बच्चे आज पास होकर अवार्ड लिए हैं, यहाँ पर प्राइजेस लिए हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ. और आने वाले जो 10th के बच्चे हैं इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी गुलबर्गे का नाम करिए, हुसैन पब्लिक स्कूल का नाम करिए, और अपने पेरेंट्स का नाम करिए. आप नाम रोशन करिए, आगे बढ़िए. ये हमारी दुआ है, ये हमारी कोशिश रहेगी. और बस काफ़ी टाइम हो चुका है, सब लोगों को भी जाना है. फिर एक बार मैं हमारे रवि कुमार साहब से, किरण सेटकर साहब से, बसरा साहब से खाली स्टूडेंट्स को बुला के आप लोगों को कैसा आगे बढ़ना है, कैसा करना है, इसका एक वर्कशॉप भी लेंगे ज़रूर हम इंशाल्लाह. बस इतना कहते हुए फिर एक बार आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है सर. मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था इसके पीछे, मैनेजमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया था मुझे इसके लिए, और ये मेरा हार्ड वर्क है, मेरा मैनेजमेंट का सपोर्ट, ये सब सेकेंड रीज़न है मेरा इस सक्सेस के पीछे. माँ बाप की दुआओं की वजह से, अल्लाह की रहमत से, ये पहला रीज़न है मेरे सक्सेस के पीछे. इसके बाद आता है सारा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और सब सपोर्ट फैसिलिटी से, स्कूल के मैनेजमेंट से, वो चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, एक नहीं तो दूसरे तरह से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. सबका बहुत शुक्रगुजार हो, और उन सब के सपोर्ट के बगैर ये सब
पॉसिबल नहीं होता सर। एग्ज़ाम से पहले 3 बार पूरा सिलेबस का एग्ज़ाम लिख चुके हैं हम, वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई हमारे लिए और फाइनल एग्ज़ाम में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मुश्किल नहीं हुई सर। मेरा गोल सर, मैं एक सर्जन बनना चाहता हूँ सर, MBBS करके MS सर्जन बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह। नीट एग्ज़ाम दूंगा। What is the feeling about you got 5th rank in Karnataka state? I am feeling very happy because I am seeing my parents proud. That is making me very happy. My goal is to become IAS officer and to serve the country. I am Abdul Haq from Hussain Public School and I have scored 617 in SSLC examination and I am state 9th rank in Karnataka. I would like to thank all my parents, teachers and everyone in the school who has helped me to score this achievement, score such achievement. And if any student want to achieve something like this, they should also study every day 1 to 2 hours. That's much is enough. Myself, Muhammad Anwar from Hussain Public School. I scored 616 in the SSLC marks, and everyone would be thinking that how to score these marks and all, and many of them will be having a lot of myths. So I wanted to bust a few of them. Many will be thinking that you have to study for an hours and hours, like 8 to 9, but it's not actually like that. If you studied for 2 to 3 hours also with a full attention, with full of your mind into it, then you could achieve anything in your life. The management and the teaching staff are excellent, and there are so many teachers who interact with you, and they didn't even lost their hopes during the pandemic. They taught us to the fullest extent of their knowledge.